Hello everyone. In today's class we will discuss elementary transformations, which is the topic of unit 1, that is matrices of course engineering mathematics 1, which is semester 1 mathematics BS 103. So elementary transformations we can obtain by row operations and column operations. So how we get it by row transformations? Look at row transformations. By row transformation, there is first elementary operation is row interchange. Row interchange, this operation is basically just interchange any two rows, say ith row and jth row of the matrix. We just interchange, displace their position. This is called interchange, row interchange, and this is the notation. ri के प्लेस पे rj and rj के प्लेस पे ri, interchange. ठीक है. Now second is row scaling. Row scaling is the elementary operation in which, say ith row, at the place of ith row is changed by k times ri, where k is a non-zero constant. यानी कि हम ith row को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी non-zero constant से, and this is called row scaling. ठीक है. Now third elementary row operation is row addition. This row addition operation is basically, it is in the left hand side, the notation is change is happening in the row which is at the left side. ठीक. तो at the jth row, what we are doing at jth row is changing by, say rj, and add it with k times ith row, rj plus kri. मीन्स jth row में जब हम ith row का k मल्टीपल ऐड कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रो एडिशन, एंड चेंज किस रो में कर रहे हैं? jth row में. सो दिस आर द नोटेशन. तो बेसिकली व्हाट इज द लैंग्वेज? ऐड अ मल्टीपल ऑफ वन रो. ठीक है. ऐड अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो. ओके. नाउ लुक एट when we apply these row elementary operations in any matrix, then the new matrix which we obtain, say it is B, and it is called row equivalent matrix. Okay. अगर आप किसी मैट्रिक्स ए पे से सपोज कितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करें, 1 2 3 वॉट एवर, हम एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो whatever the new matrix you will get in your output, this matrix, let us call it B, and then this matrix B and A, they are row equivalent. We will call it, they are row equivalent matrix या equivalent matrix. Okay, we can say if row equivalent or equivalent matrix. And this equivalence, row equivalence, is a relation. It will work as a relation, and this relation is an equivalence relation. As we know what is equivalence relation, it satisfies reflexive property, symmetric property, and transitive property. The notation for equivalent matrix is this: A and B. These matrices are equivalent. These are the notation. It means we are on any matrix, say A or B, you are applying some elementary row operations and you are getting new matrix B, then these are equivalent matrices. So this is an equivalence relation. A is related to A is row equivalent to A is row equivalent to B, then it implies B is row equivalent to A. That is symmetric. And then transitivity, A is row equivalent to B, B is row equivalent to C, then A will be row equivalent to C. This is a equivalence relation. So now basically these elementary operation we use to get the echelon form of matrix. So what is the echelon form of matrix? Echelon form of matrix
is it satisfy these two condition. If the matrix satisfy these two condition, then the matrix is called echelon matrix, and we can convert any matrix by applying row operations, elementary row operation into echelon form. Okay, तो echelon matrix क्या होती है पहले ये देखते हैं. all zero rows if any are there, it should be at the bottom of the matrix. Okay, आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, इफ़ देर इज़ एनी ज़ीरो रो, कंप्लीट रो अगर कोई ज़ीरो है उस मैट्रिक्स में, तो उस ज़ीरो रो को कहाँ रखना है, बॉटम पे, बॉटम में होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन इज़ दैट ईच लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री इन अ रो. अब लीडिंग जो नॉन ज़ीरो एंट्री है, व्हाट वी मीन बाय लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री, इट मीन्स फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर ऑफ द रो. इसको कहते हैं हम लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री. तो ईच लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री इज़ टू द राइट ऑफ द लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री इन द प्रेसीडिंग रो. तो इस लाइन को, सेकेंड लाइन को हम कैसे समझते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से हम समझाएं, ज़्यादा समझ में आएगा. लुक एट दिस एग्जाम्पल. चेक दीज मैट्रिसेस आर echelon मैट्रिसेस और नॉट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ज़ीरो रो अगर कोई है वो बॉटम में होनी चाहिए. सो दिस इज़ नॉन ज़ीरो रो, दिस इज़ नॉन ज़ीरो रो एंड दिस इज़ नॉन ज़ीरो रो. ज़ीरो रो का मतलब होता है ईच एंट्री शुड बी ज़ीरो इन दैट रो, देन इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो रो. This fourth row is zero row and already it is at the bottom. So this first condition is satisfied. What about second condition? Second condition is saying non-zero leading entry in a row. तो अगर हम if you look at first row, तो what is the non-zero, first non-zero entry is this. So this is the leading non-zero entry of first row. Then if you look at second row, so leading non-zero entry of second row is third entry, third position पे second row की third entry is leading non-zero entry. अच्छा, now look at the statement again. It is saying leading non-zero entry in a row, that is if we are talking about first row, ठीक, then is to the right of the leading non-zero entry in the preceding row. तो फर्स्ट की कोई preceding row नहीं है, तो हम फर्स्ट की जो भी non-zero entry है उसको हम नहीं, नेक्स्ट रो में आप देखिए, नेक्स्ट रो जो सेकंड रो है इसकी लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है, ये है. ठीक, तो ये कहाँ होनी चाहिए, इसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी राइट, it should be on the right of the leading non-zero entry. It should be right of the leading non-zero entry of whom, in the preceding row. तो preceding row क्या हो गई, सेकेंड रो की के लिए अगर हम preceding row की बात करें तो फर्स्ट रो. तो सेकेंड रो की जो लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री है, दैट इज़ दिस, इट शुड बी इन द राइट ऑफ लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ फर्स्ट रो. तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, आप ऑलरेडी देख लीजिए. फर्स्ट रो की लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री ये है और सेकेंड रो की लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री कहाँ आ रही है, राइट में आ रही है. फाइन, इट इज़ द पोजीशन टू द राइट. सो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है. यानी कि echelon फॉर्म के लिए आपकी सेकेंड रो की जो लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री है वो फर्स्ट रो की लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री के जस्ट नीचे से स्टार्ट नहीं होगी, लेफ़्ट से स्टार्ट नहीं होगी, राइट से स्टार्ट होगी. अब राइट में इसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, बट इट शुड बी एट द राइट. अगर हम नाउ कम एट थर्ड रो, थर्ड रो के लिए जो प्रोसीडिंग रो हो गई वो हो गई सेकेंड रो. दिस इज थर्ड रो, थर्ड रो के लिए प्रोसीडिंग रो हो गई सेकेंड रो. अब थर्ड रो की लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री, वेयर इज थर्ड रो की लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री इज दिस. नाउ चेक, इज इट इन द राइट ऑफ प्रीवियस रो leading non-zero entry or not? Yes, it is satisfies this condition. थर्ड रो की लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री सेकेंड रो की लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री के राइट में आ रही है. ठीक, दिस इज़ द राइट पोजीशन. तो कंडीशन फुलफिल हो रही है. और उसके बाद आपकी
नॉन ज़ीरो रोज़ ख़त्म हो गई, जो लास्ट रो है वो ज़ीरो रो है। इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ये एक्लन मैट्रिक्स है। ठीक, इसी तरह आप इस मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो आपकी ये हो गई, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो आपका लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो गया फर्स्ट रो का। उसके बाद जो सेकंड रो का लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, राइट से। तो देखिए सेकंड रो का जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो राइट में है कि नहीं, या दिस इज़ ऑन द राइट ऑफ द प्रीसीडिंग रो नॉन ज़ीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट। उसके बाद आप नेक्स्ट रो पे आइए, तो ये आपकी ज़ीरो रो है, तो विच इज़ एट द बॉटम। तो फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो ये मैट्रिक्स भी आपकी एक्लन मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर आप थर्ड मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो थर्ड मैट्रिक्स में देखें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है, कहाँ आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे है। ठीक, तो ये है आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। अब जो सेकंड रो पे अगर आप आएंगे तो सेकंड रो का लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट कहाँ नहीं होना चाहिए, इसके नीचे नहीं होना चाहिए और इसके लेफ़्ट में नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, राइट में कहीं होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए सेकंड रो का लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट कहाँ है, ये जो कि कहाँ है, राइट में। पोजीशन कहाँ है, इट इज़ एट द राइट ऑफ प्रीसीडिंग रो लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट। ठीक, अब थर्ड रो की अगर आप बात करें तो थर्ड रो को आप किससे कंपेयर करेंगे, सेकंड रो की लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट से। तो थर्ड रो का लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट कहाँ है, ये है, जो कि सेकंड रो के लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट के कंपैरिजन में कहाँ पे आ रहा है, राइट में। ठीक, तो जस्ट हमें सिर्फ प्रीसीडिंग रो से कंपेयर करना है, प्रीसीडिंग रो के कंपैरिजन में देखना है। तो थर्ड का लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट कहाँ आ रहा है, राइट में है, सेकंड रो के लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट से। ठीक, तो ये भी आपकी एक्लन मैट्रिक्स है। देयर इज अ रिजल्ट ऑन दिस बेसिस ऑफ एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस वी कैन फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिसेस। तो किसी मैट्रिक्स की जो हमें रैंक फाइंड आउट करनी है उसको हम एक्लन फॉर्म यूज़ करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज़ नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एक्लन फॉर्म ऑफ ए, द मैट्रिक्स ए। तो जैसे अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी देखिए, अगर इसी मैट्रिक्स को देख लेते हैं यहीं पर रैंक के लिए, तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स रोज़ कितनी है, फर्स्ट 1 रो 2 रो एंड 3 रो। तो इस मैट्रिक्स की अगर हम रैंक का नोटेशन रो लेते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स की रैंक की बात करें तो क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, 1 2 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। और ये जो लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट होते हैं इनको हम कहते हैं पीवट। ठीक है, पीवट एलिमेंट्स। तो पीवट्स कितने हैं, 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं और 3 पीवट्स हैं। सेकेंड मैट्रिक्स को देखो, अगर आप इसकी रैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हम एक्लन फॉर्म ऑलरेडी है। ये आपको नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कब चेक करने हैं, व्हेन यू कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अभी ये ऑलरेडी हमारे पास एक्लन फॉर्म में है, तो वी आर जस्ट चेकिंग व्हाट इज़ द रैंक। यहाँ पे हमारी इस मैट्रिक्स के लिए जो रैंक है वो क्या हो जाएगी, 1 and 2। रैंक इज़ 2। ठीक है, 2 नॉन ज़ीरो रोज़ या 2 पीवट्स, नंबर ऑफ पीवट्स आर 2। इस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, 1 2 3, या नंबर ऑफ पीवट्स कितने हैं, 3। तो यहाँ पे हमारी रैंक कितनी हो जाएगी, 3। सो दिस इज़ द वेरी इजी मेथड टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो in next class we will see how we convert the matrix into Echelon form, and there are so many uses of Echelon form. We use Echelon form to compute the rank, also to compute the inverse of matrix. We can use Echelon form to compute the inverse of the matrix. Generally जो आपने inverse अभी पढ़ा होगा, we use the formula inverse is adjoint of A and determinant of A। तो हम inverse को यूजिंग एक्लन फॉर्म भी कंप्यूट कर सकते हैं। और तीसरा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि हम इसको यूज़ करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस
को भी सॉल्व कर सकते हैं। वी विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लासेस।